punctuality, Ashna, Ashna. Grade 5th A, Ashna. Izhan. Grade 6, Izhan. Grade 7, Subhan. Grade 7, Subhan. Grade 8, Lala Mohsin. Grade 9, Aman. Grade 9, Aman. Grade 10, Asif. Grade 10, Asif. Next category, discipline. Maintaining discipline. 5th A, Muskan. 5th A, Muskan. Grade 5th B, Salman. 6th Uzair. Grade 6th Uzair. Grade 7 Samir. Grade 7 Samir. Grade 8 Abdul Rahman. Grade 8 Abdul Rahman. Grade 8 again Hamdi. Grade 9 Irfan. Grade 9 Irfan. Grade 10 Rehan. Grade 10 Rehan. Sir, to facilitate this, Ishrat Iram from grade A. Second prize in Siratul quiz, Afsa, 5th A, Afsa. Third prize in Siratul quiz, 5th A, Shaista Saira Banu. Again third prize, Iram, 5th A, Iram. Third prize, 5th A, Iram. First prize from 6th, Khalifa bin Fahad. 7th first prize, Amina and Sania. 8th class, Soeba. First prize, 8th class, Soeba. 9th class, first prize, Obed Ansari. 2nd prize from 6th grade, Zulekha. 2nd prize from 6th grade, Zulekha. 3rd prize, Adiba. 3rd prize, Adiba. 2nd prize from 6th grade, 7th. Tazeen. Grade 7, 3rd prize, Masha. 3rd prize, Masha. ऐसा पलट जाना आप. Second prize, grade 8, Afra Khan. 3rd prize from grade 8, Mehveen. ना सामने. Grade 8, 3rd prize, Ruqayya. 3rd prize, Shoaib. Clap hands, everyone. Clap hands. What do you have? Yes. From grade 8, first prize, Mehveen Fatima. From grade 9, first prize, Mohammad Shoaib. Sueba.
Sakina Fatima from grade 6. Khalifa bin Fahad. Sakina Fatima. Khalifa bin Fahad. Second prize from grade 7. Ruqayya Naz. Second prize from grade 8. Bibi Zainab. 9th class second prize winner Obaid Ahmad Ansari. Third prize winners Adiba Begum. Grade 7 Masha B. Grade 8 Afra Khan. Grade 9 Khatija Naz. Bibi Zainab. Shaista Saira. Jumeri Anjum. Sakina Fatima. Bibi Zainab. I would like to call Munir sir to facilitate allocation and essay writing winners. Clap. Grade 7 Ruqayya. ऐसा पलट जाना मैम आप लोग. इधर 8th class Rehan. And again first prize winner Soeba. 9th class Obaid. Yes. Essay writing first prize winners Aksa. Izhan. Grade 6 Izhan. 7th class Tazim. 8th class Aspia. 9th class Khatija. Second prize winners from grade 5th A for allocation Aksa. From 6th grade Khalifa bin Fahad. 7th grade Amina. Second prize winner again Masha. 8th class Shoaib. 9th class Aman. Essay writing second prize winners Sufyan 5th A. 6th class Rumesa. Furqan 7th class. Ruqayya 8th class. Aman 9th class. Third prize winners for education Miskin 5th A. Izhan 6th class. Furqan 7th class. Sania 7th class. Qadri 8th class. Shoaib 9th class. Essay writing third prize winners Juveria 5th A. Zobia 6th class. Akif 7th class. Abdul Rahman 8th class. Irfan 9th class.
The criticism for the award is based on the performance of the student in studies, extracurricular activities, regularity and participation in workshops, social and cultural events. Today I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievement of a brilliant student who made both the school and their parents proud. So any guesses? Who is the student of the year? So I would like to call Sufyan for Student of the Year award. Give a huge round of applause. The clap should not stop. Give a huge round of applause. So now I would like to call Asmal Husna students. Give a huge round of applause. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث المسيح الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المتين القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الماضي الظاهر الغائب الوالي المعاد الغوال المنتهي المعروف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي الكبير الحكيم الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم شيء فلما شاء على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. We also have among us one of our distinguished guests, Brother Imran, who also is in who runs in school with the name Jack and Jill in Karwan area. I would like him to come on stage and share a few words with us, some guidance for our high school students. Assalamu alaikum. First of all, I thank to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the guys, alhamdulillah, who are sitting on the dais. Guys, the founder of, mashallah, Green Villa High School. And then to Mr.
Jafar Mahmood sir, mashallah. And then to all the audience, mashallah, who has been sitting here patiently, mashallah. Myself, Muhammad Imran. I am BTech Mechanical Engineer and MTech HVAC and PhD in Air Conditioning. And I have completed my BA from Maths and Science, and then right now I am doing Law. And I did around 75 diplomas. It is around 2 months, 1 month, 3 months diplomas. And I have been traveled to around 13 countries in the world. And I can speak in many languages. Alhamdulillah. MashaAllah, seeing MashaAllah young generation here. So, देखो बेटे, just एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़माना हमारा पढ़ने का है, इसको हम सही यूटिलाइज करें, तो जब हम जाके बड़े बड़े लोग बन सकते हैं। अभी जैसा कि आप जो आज पढ़ रहे, कल जाके आप अगर अच्छे बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो इतने काबिल बनना है। हम जो मैं अबू धाबी में हमारी कंपनी में था, वहाँ पे आपको बेसिक सैलरी जो है माशाल्लाह से हमारे ऊपर इंजीनियरों की 35 लाख थी पर मंथ की बात कर रहा हूँ। कितनी? 35 लाख। लेकिन ये हासिल करने के लिए आपको शुरू से अच्छा पढ़ना है बेटे। क्या करना है? शुरू से अच्छा पढ़ना है। नहीं माशाल्लाह, अभी जफर सर आपको मेमोरी डेवलपमेंट क्लास दी। देखो बेटे, अभी जफर सर की क्लास ये थी कि आपको ये बताया गया कि आपको हदीस में भी आता कि अल्लाह पाक जिसका मफ़हूम है, हदीस पाक का मफ़हूम बता रहा हूँ कि अल्लाह ने किसी गोरे को काली पर तफरीक नहीं दी और किसी काले को गोरे पर तफरीक नहीं दी। अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, हर आदमी पढ़ सकता है। और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। देखो बेटे, सबसे पहले पढ़ने के लिए इंसान के अंदर अपना विल पावर होना, क्या होना, और जिसके पास विल पावर रहता है वो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक वाक़या सुना तो मैं आपको। एक लड़की जो है ना ट्रेन से गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे? जैसा गुजर रहे थे देखे नहीं, ट्रेन आई और उनके पैर कट गए और धड़ इधर पड़े हुआ है और पैर इधर पड़े हुए। ऐसा उनके साथ करीब 16 घंटे गुजरे। कितने घंटे? 16 घंटे ऐसा गुजरने के बाद एक आदमी देखा कि भाई लेडी गिरे हुए हैं, उनके पैर इधर गिरे हुए, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में अच्छे सारे अपने रिश्तेदार मिलने आते। तो एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में बच्ची बेड पे पड़ी हुई है, बोले कि भाई अब ये बच्ची का ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। क्या बोले? अब ये बच्ची का ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो बेटे, विल पावर किसको बोलते हैं? अब ये लड़की जो बेड पे सोई हुई है, ये लड़की बैठ के इरादा करे कि मैं ऐसा काम करूँगी कि दुनिया में लोग पैर रख के भी वो काम ना कर सके, दुनिया में लोग पैर रख के भी वो काम ना कर सके। और ये लड़की जो है वहाँ इरादा करे और अपने आर्टिफिशियल पैर लगा के। हमारा सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है बेटे? माउंट एवरेस्ट। माशाल्लाह, आप लोग ज़रा उसका डिटेल गूगल में घर पे जाके सर्च करें, उसकी हाइट कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये लड़की जो है आर्टिफिशियल पैर लगा के बेटे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेगी और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा है। तो बेटे, जो लड़की चल नहीं सकती थी, वो लड़की अपने दिल में इरादा करे कि मैं वो काम करूँगी जो लोग पैर रख के भी नहीं कर सके। अच्छे अच्छे लोग पैर रख के भी ऊपर नहीं चढ़ सकते बेटे, अब खाली हाइट देखे तो आप हिल जाते। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ हमारा अजम्पशन और हमारा विल पावर रहता है। क्या रहता? विल पावर रहता। तो ये वो लड़कियों के इरादे हैं बेटे। फिर हमारे बच्चे बच्चियाँ जाके चल के बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे चीज़ें बनेंगे बेटे। हमारी क्लास में से हमारे टॉपर है बेटे, जो माशाल्लाह USA में सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे हमारे सीनियर थे, हमारे कॉलेज के टॉप मास्टर थे माशाल्लाह। आज उनकी सैलरी मैं समझता हूँ महाना कुछ 17 या 17.5 लाख है बेटे। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे वहाँ पे पहुँचे। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। तो बहुत शुक्रिया जफर सर, हमारे बैंक सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माशाल्लाह प्रिंसिपल के बारे में भी मैं बहुत सुना, बहुत माशाल्लाह काबिल, बहुत माशाल्लाह फ़ोन पे बात होती थी एक सर। तो बड़े अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। करेंगे? कौन कौन बेटे डॉक्टर बनेंगे? हाथ उठाओ। कौन कौन इंजीनियर्स बनेंगे बेटे? हाथ उठाओ। कौन कहाँ मिलेंगे 10 साल के बाद इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो? कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर इमरान, ब्रदर जफर साहब, मौलाना वजीरुद्दीन साहब जो बात बैठे हुए, और पेरेंट्स खास तौर पर, और टीचर्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
thanks for making it a successful event. Usually annual days, the purpose for celebrating an annual day is we want to show in front of people what we have achieved during the year. And it also helps for a school for the reputation. But the purpose why we have gathered here is not for any promotion or any such activities. The people who have been brought in, who have been requested to join this session, all of them, if you see, they have been associated with social service, most of them. We have already spoken about Brother Moiz, who is also working, you guys are familiar. Brother Moiz is involved with a society which provides scholarship for students, around 300 students all over India, and more than 120 students in Hyderabad are benefiting from the welfare scheme that Brother Moiz have organized here. Similarly, we have heard Maulana Wajiuddin Sahab, how he is associated with all the charitable activities that they are going around. So one thing in common, Brother Imran has also mentioned about all the activities he is involved in. He is educating people around and his capabilities. So one thing in common across all the scholars or our guests is they are all associated with the social welfare of the common people. अल्लाह ताला की बंदों की खिदमत में अपने आप को अपना वक्त लगाए हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने इन सबको कामयाबी दी है। आज हम उनके लिए बैठ के उनके अल्फाज सुनने के लिए जो है वक्त निकाल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो आप सब भी जब अपने आप को अपनी सलाहियतों को इस तरह से आप अपनी इस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां दूसरों तक हम जो है सहूलत पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप भी इसी तरह जो है किसी स्टेज पर बैठ के अपना स्पीच डिलीवर करेंगे इंशाअल्लाह। लाइव एग्जाम्पल सर्व करते हैं हमको समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए। एक शख्सियत जिसको हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए, Brother Moiz, right? He has done his engineering like Brother Imran, and he is working for a multinational company in Deloitte as a manager, right? And he is also organizing scholarship for 300 students. I am repeating it again and again, just bear with me, I am coming to the point. This is one personality who is successful, who has brought name and fame to their parents, to the society. On one side he is serving, he is helping several families. 300 families जो है आज उस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा उठा रहे हैं। ये एक शख्सियत है जिसने अपने तालीम पे मेहनत की और अपने आप को चैलेंज किया और हासिल करने के लिए दिन रात एक ये ख्वाब देखे, उस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को सर्व किए। उनके माँ बाप जो उस सलाहियतों को जो है वहाँ तक पहुँचाने में उनके लिए मेहनत किए। उसी के बिल्कुल बरक्स जो अली नगर में रहने वाले लोग हैं इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कुछ दिन पहले रोड पे जो है कुछ बच्चे बैठ के क्या कर रहे थे, नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तो उस वक्त एक आदमी जाता है, उनको बोलता है कि भाई यहाँ बैठ के क्यों पी रहे हो। इस पर वो लोग बरहम होके उस आदमी पे हाथ उठाते हैं। वाकिफ हैं आप लोग, राइट? ये वही शख्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ब्रदर मोइज। उनके ऊपर जो है बदतमीजी से हाथ उठाने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और जो है जो भी उन हाथ उठाने वालों का जो भी काम था उनको पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई। तो ये दो अलग अलग मुख्तलिफ शख्सियात हैं। वो जो लोग वहाँ बैठ के नशा कर रहे थे वो कोई गैर नहीं है, वो कोई हमारी कम्युनिटी के बाहर से नहीं है, वो हमारी कम्युनिटी के अंदर से ही वही लड़के हैं जिन्होंने अपनी तालीम के वक्त तवज्जो नहीं दी। वो जो है अपनी तालीम के वक्त जिनके माँ बाप ने उनकी तवज्जो नहीं दी, उनकी फिक्र नहीं की। वो जब बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे तो आराम से बैठ जाते थे। वो बच्चे जो है रात भर घूमने बाहर निकल जाते थे, उनके माँ बाप तवज्जो नहीं देते थे। ये वही बच्चे हैं। ये 10 साल 5 साल पहले ये बच्चे जो है 10th स्टैंडर्ड में थे, आज जैसा आप 10th में हैं या 9th में हैं,
उन्होंने अपनी सलाहियतों को ज़ाया किया और आज ये हालत हो गई उनकी नाकामयाबी की वजह से, मायूसी की वजह से आज वो नशे में चले गए, नशा करने की आदी हो गए। और एक तरफ वही शख्स है जो 20 साल 15 साल मेहनत किया, आज उसको सब सुनना चाह रहे हैं, वो आदमी काबिल बन गया। और जो लोग अपनी सलाहियतों पे काम नहीं किए और अपनी सलाहियतों को ज़ाया किए, वो आज नशे के हालात में लोगों को परेशान करने के लिए अपना वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और जेल भरने की जो है जरिया बन रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपने वक्त को किधर इस्तेमाल करना है, किस तरफ जाना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। इंशाअल्लाह मेहनत करिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ये दो शख्सियत अगर हम देखें, दो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज, कोई शेर याद आता आप लोगों को जो रिसेंटली हम लोग याद किए? ठीक है, और कोई दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, मैं हिंट देता हूँ। परवाज, किसको याद है? आगे बोलिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगज का जहां और है शाहीन का जहां और। क्या माने? करगज बोलते हैं वल्चर को जो मुर्दा खाता है, वल्चर जानते हैं, गिद्ध बोलते हैं जिसको, जो क्या खाता है, मुर्दार खाता है, जो मरे हुए जानवर को खाता है। शाहीन जो है एक परिंदा ऐसा है जो जिंदगी से भरपूर है, ऊंची उड़ान भरता है और खुद शिकार करके खाने पे इत्तेफाक करता है। तो यहाँ अल्लामा इकबाल बता रही है कि हवा तो वही हवा में अपनी जो है फ्लाइट ले रहा है, मुड़ने की कोशिश कर रहा है, एक ही कॉमन हवा, ऐसा कोई जगह नहीं है कि करगज कोई और दुनिया में है और शाहीन कोई और जगह में है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, लेकिन करगज का जहां और है शाहीन। तो बिकम ए शाहीन, फ्लाई हाई, हैव बिग एम्बिशन, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, be somebody who would like you to spend time with you rather than you spending time in the jail or on footpath on the chabutras. So don't go towards that, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. ज़माने का तू चूम ले तलियों को, जिसको भी मिला टुकड़ा हसनैन के नाना से, जिसको भी मिला टुकड़ा हसनैन के नाना से, मंगता वो बना सुल्तान ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। महबूब ना गम करना सरे हश्र तू उम्मत का, महबूब ना गम करना सरे हश्र तू उम्मत का।
का आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum, parents, students. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for coming and joining in this event. So, one of the main item on this event today on the annual day celebration was to present in front of you the training session for memory training that we've been having. So Mr. Jafar sir has taken out his time and he has given a workshop for the students for last 10 days. And during these 10 days, what students have learned, though we could not get the 100% out of this session because of various reasons, but whatever they have learned, we would like to demonstrate in front of you. So please see the demo with full focus and try to motivate the students so that they can further work on these skills. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning. Respected guests on the rise, dear parents, and my dear students. Alhamdulillah, we had an exciting journey of more than 2 weeks in the school. इस स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया की बेहतरीन मेमोरी टेक्निक्स और उसका एप्लीकेशंस बच्चों ने सीखा। उसका एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ ज़फ़र महमूद, आई एम फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका। आई एम ए प्रोफेशनल मेमोरी ट्रेनर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में आए हुए मोर देन 2 डेकेड हो गए और मैंने हज़ारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है इंडिया और इंडिया के बाहर भी जाके, लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, मस्कत, बहरीन, कुवैत, श्रीलंका, मालदीव्स, बैंकॉक, हांगकांग और मलेशिया। Even I train many professionals also, like doctors, engineers, managers, scientists, professors, lecturers, teachers वगैरह। इस दुनिया में there is nothing like a good memory or a bad memory। सिर्फ 2 तरीके की मेमोरी है, एक ट्रेन और एक अनट्रेन्ड मेमोरी। ट्रेन मेमोरी बोलो तो क्रिएटिव मेमोरी। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके बच्चे आपके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पेश करेंगे। अनट्रेन्ड मेमोरी बोलो तो अभी तक हमें जो पुराना मेथड क्या भी चीज़ याद करना बोला तो फॉलो करते हुए आए, इससे बोलते हैं उर्दू में रट्टा मारना, अरे बाहर करना लिखना, बाहर करना लिखना। यहाँ पे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और इंफॉर्मेशन बहुत कम जाता है माइंड में और गारंटी भी नहीं। ये ट्रेन मेमोरी में बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे टाइम बिल्कुल कम लगता है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा जाता है और दैट टू पर मिनट। नाउ इन दिस रिगार्ड इंशाल्लाह आपके सामने ये हमारे जो ट्रेंड बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सामने, आपके सामने एक लाइव डेमो पेश करेंगे। आपके सामने एक 25 नंबर से लिखा होगा। मैम कैन यू राइट? आई विल सिट हियर। अब हमारे ट्रेंड बच्चों को मुझे 25 वर्ड दें, मैं बच्चों को पास करूंगा। इंशाल्लाह आपके सामने बच्चे फौरन याद करके रिकॉल करेंगे। Students, are you ready? Yes. So close your eyes now. कौन सा भी एक वर्ड अपनी मर्जी का? Animal. Number 1, animal. Number 1, the word is animal. Number 2, expectations. Number 2, expectations.
Number 3, knowledge. Education. एक मिनट आ रहा हूँ. Number 3, knowledge. Number 4, education. Number 4, the word is education. Number 5, Imagination. imagination. Number 5, imagination. Sir, is dedication. Independent. एक मिनट. Number 6, dedication. अदर पेरेंट भी बोल सकते हैं. सर मैं एक ही और साउंड सुना इधर है. Independent. आ रहा मैडम. Number 7, independent. Number 7, independent. एक मिनट आ रहा हूँ. Number 8, respect. Number 8, the word is respect. Number 9, information. Number 9, information. Number 10, G, human. Number 10, human. Number 10, human. Number 11, social. और पीछे जो पेरेंट बैठे अभी बोल सकते हैं सर. Number 11, social. मारो मैडम. Number 12, सर बोलिए आप कोई वर्ड अपनी मर्जी का. एक मिनट मैम, पेरेंट्स से बोलेंगे. फादर. Story. Number 12, story. Demand. Number 12, story. Inspiration. Number 13, inspiration. Number 13, inspiration. Demand. Number 14, demand. Number 14, the word is demand. Number 15, 1-5. Yes, ma'am. Huh? Appreciation. Number 15, appreciation. G? School. Number 16, the word is school. Okay. Number 17 is environment. Number 17, the word is environment. Number 18. 18. Okay, 18. Intelligent. Oh, one minute, beta. Number 18, intelligent. Number 19, religious. Number 19, religious. I thought you were telling ice cream. Number 20, 20. Economics. Exam. Number 20, the word is exam. Number 21, extension. Number 21, the word is extension. Number 22, Determine. hard work. Number 22, the word is hard work. Determine. 23, Determine. determine. 23, determine. Islam. Information. Information. 24, information. हो गया नहीं? One more last. 22. नहीं नंबर 9 में इंफॉर्मेशन. नंबर 9 में इंफॉर्मेशन है. यस सर. Enthusiasm. Number 24, enthusiasm. सर पीछे पेरेंट बैठा हुआ है, कोई वर्ड बोलिए सर अभी. एनसाइक्लोपीडिया, ये मेरा फेवरेट वर्ड है.
Number 25, encyclopedia. Okay, thank you, ma'am. मैं बच्चों के रिवर्स करता हूँ एक दफ़ा, इंशाल्लाह they will recall it. Number 1, animal. Number 2, expectation. Number 2, expectations. Actually, expectations. Number 2, expectation. Number 3, knowledge. Number 3, the word is knowledge. Number 4, education. Number 4, the word is education. Number 5, imagination. Number 5, the word is imagination. Number 6, dedication. Number 6, the word is dedication. Number 7, independent. Number 8, respect. Number 9, information. Number 9, the word is information. Number 10, human. Number 10, human. Number 11, social. Number 11, social. Number 12, story. Number 13, inspiration. Number 13, the word is inspiration. Number 14, demand. Number 14, the word is demand. 15, appreciation. 15, the word is appreciation. Number 16, school. Seventeen, environment. 17, the word is environment. Number 18, intelligent. Number 19, religious. Number 19, religious. 20, exam. 21, extension. 21, extension. 22, hard work. 23, determination. Determine. Okay, determine. 23, determine. 24, enthusiasm. Number 24, enthusiasm. And final word, encyclopedia. Number 25, the word is encyclopedia. बस हो गया? बस ready?
Was ready? Sure? Confident? Sure? Okay, I can watch a bit for what I know. They don't need. Repeat. Okay. Now, Alhamdulillah, ये हमारे champion बच्चे, Alhamdulillah, they are studied. Now they can recall 1 to 25 or 25 back to 1. आप forward सुनना पसंद करेंगे या backward सुनना पसंद करेंगे? 1 to 25 सुनना पसंद करेंगे या 25 से 1 तक? Backward? 25 back to 1. Students, are you ready, man? Yes. आंखें बंद करो बेटा. Close your eyes. Take a deep breath. Full focus करो. Give your best. Okay, I will tell the number. म्हणजे बाजू का word बोलना. Attach word. समझ में आपको? Yes. Boys ready? Yes. Okay, number 25. 24. 23. Mic पकड़ो बोलते रहिए. Okay. Take the mic. 22. Hard work. 22 hard work. एक मिनट. 23. 23 determined. 22 hard work. सही बोला ना बच्चे. 21 Extension. 20 19 very good. 18 intelligent correct. कौन नो बोल रहे हैं? 17 बेटा सब मिल के बोलना. Number 16 15 appreciation बोलो. Okay, no problem. 14 13 12 correct. Story correct. Okay. 11 10 9 8 7 6 5 नहीं imagination 4 3 2 1 ये वर्ड बहुत हार्ड वर्ड्स हैं. नॉर्मली मुझे दिए जाते हैं जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने आता हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जस्ट रॉ बच्चे रिसेंटली सीखे. सो माशाल्लाह आई फील हैप्पी एंड प्राउड. इतने हार्ड वर्ड्स इंस्टेंटली स्टोर करके रिकॉल करें. थोड़ा बहुत माइनस प्लस गलती हो रहा है उसे एडजस्ट कर लीजिएगा. नोबडी इज परफेक्ट हियर. ओके. दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिव मेमोरी. क्रिएटिव मेमोरी में कैसा भी रिकॉल कर सकते हैं. फॉरवर्ड बैकवर्ड हियर एंड देयर. लेकिन रोड मेमोरी में ओनली वन वे ट्रैफिक. ओके. अभी आप नंबर बोलो. इंशाल्लाह हमारे बच्चे ये बाजू का जो वर्ड है वो बोलेंगे. 1 by 1 प्लीज. 15 नंबर 15 प्लीज. नंबर 15 नहीं रॉन्ग. आराम से जरा टाइम लो मगर करेक्ट आंसर बोलो प्लीज. अप्रिसिएशन. ओके. यस पेरेंट्स. नंबर 1 नंबर 5 प्लीज. मैं आपको बोलता हूँ. ओके मेरा सुनकर बोलो. ओके. 11 नंबर 11 नंबर 23 नंबर 9 number 5 नंबर 5 नंबर 24 20 ओके. नंबर 8
Correct. Okay. Now, number 15. Parents बोले अब बोलिए ना बेटा, दूसरा चांस देंगे, दूसरा चांस देंगे बेटा. Number 16. School. Number 12. Story. 25. माशाल्लाह. एक बेटा. अभी आप वर्ड बोले, ये बच्चे नंबर बोलेंगे. आप वर्ड बोले और नंबर बोलेंगे. Imagination. 5. Story. 12. ह्यूमन. 10. एक मिनट मैं बोलता हूँ. हार्ड वर्क. 22. एग्जाम. बेटा मैं बोलता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज होता हूँ. मैं बोलता हूँ. हाँ 24. नहीं, आप वर्ड बोलें. Story. स्टोरी. 12. नॉलेज. डिमांड. 14. 14. ह्यूमन. 10. इसका मतलब टेस्टेड है ना. अब वर्ड बोलो तो नंबर बोले, नंबर बोलो तो वर्ड बोल नहीं. ये हमारा मकसद सिर्फ ये वर्ड नहीं, हमारा मकसद है बच्चों को ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए ये पूरी टेक्स्ट बुक कैसा याद करना, रिकॉल करना, हमने इनको ट्रेन किया है. बेसिक से हमने स्टार्ट किया. फर्स्ट फॉर एग्जांपल, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते तो क्या होता है, कोई सी बुक पहला पेज दूसरा पेज ओके, जब थर्ड पेज पढ़ने जाते तो हमारा माइंड घूमने चले आता. उसके बाद 50% भी हमारा चैप्टर याद नहीं आता बिकॉज ऑफ द फॉल्टी रीडिंग हैबिट. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइंटिफिक मेथड के थ्रू टेक्स्ट बुक कैसा पढ़ना, उसको कैसा ट्रांसफर करना माइंड में, कैसा रिकॉल करना, ये प्रैक्टिकली स्टेप्स इनको सिखाया गया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में. हमारा मेन फोकस था अप्लाइंग द मेमोरी टेक्निक्स इन एजुकेशन. पढ़ाई में कैसा बच्चों को आसान होना. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने अप्लाई करके दे हैव बिकम ए एक्सपर्ट. जो आप देख रहे हैं ये चार्ट्स, एक चार्ट जो है एक टेक्स्ट बुक है. ये चार्ट पढ़ना बराबर, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना बराबर. ये छोटे छोटे चार्ट्स हैं, वो एक चैप्टर है, वो एक चैप्टर है. ये पावरफुल टेक्निक्स हैं. ये बच्चों को एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे बहुत ही आसान होता है. अब ये पूरा चार्ट पढ़ ले तो बच्चे पूरी टेक्स्ट बुक पढ़े ऐसा. उसके पीछे इसकी मेहनत है. पहले चैप्टर्स पढ़ को रहना बच्चे, वोकैबुलरी सीख को रहना, बहुत सारा काम है. ये फाइनल प्रोडक्ट है. ये चार्ट्स के लिए बच्चों के लिए अप्रिशिएशन कीजिएगा. मैं जब बताते हुए ये खुशी हो रही है, बहुत सारे बच्चे पूरी टेक्स्ट बुक फिनिश कर डालें. गर्ल्स कैन स्टैंड अप, दोस हु कंप्लीटेड द एंटायर टेक्स्ट बुक. खड़े हो जाए. इधर आओ, इधर आइए. इसके पीछे बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत है. ऐसा नहीं कि विदिन, अब मुझे यकीन है नॉट ओनली दिस, ये बच्चे भी करीब में है, यू नो भी करीब में फिनिश करने की. जरा बच्चे 60% कंप्लीट करें, 70%, 80%, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. आज तक ये बच्चे 100% फिनिश कर सो. थैंक यू बेटा. आगे बढ़, बिठा देंगे. तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होते हैं, सुने होंगे आप. ये बच्चे पीरियोडिक टेबल स्टोर किए हैं, थोड़ा बहुत वाकई स्टोर करने वाले हैं. अब जितने भी स्टोर किए हैं इंशाल्लाह वो रिकॉल करेंगे. Am I right? 1 to 20 तक, 1 to 20 तक रिकॉल करो. Close your eyes now, boys and girls. पीरियोडिक टेबल, इसमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर आएगा, एलिमेंट आएगा, सिंबल आएगा. ओके, हमने इनको ट्रेन किया है, थोड़ा बहुत सिखा के हूँ. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बाकी पूरे 119 केमिकल एलिमेंट सीख जाएंगे. आपके सामने थोड़ा बहुत एक डेमो पेश करेंगे. बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? यस. एटॉमिक नंबर 1. सबर बेटा, जरा प्लीज, जरा सबर. ताबे इमाम के नहीं. एटॉमिक नंबर 1. सिंबल. Atomic number 2. Symbol. H. Atomic number 3. Symbol. Atomic number 4. Symbol. Atomic number 5.
Symbol? E. Good. Atomic number 6. Carbon. Symbol? C. Atomic number 7. Hydrogen. Symbol? N. Atomic number 8. Oxygen. Symbol? O. Atomic number 9. Chlorine. Chlorine. Symbol? Fe. Atomic number 10. Neon. Symbol? Ne. Atomic number 11. Sodium. Symbol? Ne. Atomic number 12. Magnesium. Symbol? Fe. Atomic number 13. Aluminium. Symbol? Air. Atomic number 14. Silicon. Symbol? Si. Atomic number 15. Phosphorus. Symbol? P. Atomic number 16. Sulfur. Symbol? S. Atomic number 17. Chlorine. Symbol? Cl. Atomic number 18. Argon. नहीं, argon. Atomic number Argon. argon. Atomic number 19. Potassium. Symbol? K. Atomic number 20. Calcium. Symbol? C. अब फिलहाल के लिए इनके लिए 20 कॉफी है। जब इन इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इनको हायर लेवल जरूरत पड़ती है, तो इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सिखा के हूँ। 20 इनको इंस्टेंटली आते हैं बच्चों को। ये ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलास, इक्वेशंस ये बच्चे सब सीखे हैं। पिक्चर फिगर डायग्राम्स कैसा याद करना ये सब सीखे हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश में एक लॉन्गेस्ट वर्ड है, इंग्लिश का एक लॉन्गेस्ट वर्ड है सर, सुने होंगे आप। अब ये बच्चे वो ये किचक वर्ड वो जिसमें 45 लेटर्स हैं। ओके, अब हम आपके सामने रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिकॉल इंग्लिश के लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। आर यू रेडी बॉयज? Yes, sir. ओके, स्टार्ट। Yes, once more please. Next time, name and no Okay, आप में से कोई सिंगल रिकॉल करेंगे? डरो नहीं? Yeah, come on. रिकॉल करो बेटा। Yeah. Pneumono, ultra, microscopic, silico, volcano, coniosis. स्पेलिंग के साथ में ट्राई। और कौन निकाल करेंगे? निकाल करना। ट्राई करो। या louder. PNEU, हाँ. MONO, ULTRA, MICROSPIC, SILI, VOL, CANO, CIONI, SIS. वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये इंग्लिश का लंगियस्ट वर्ड है। ये इसका मतलब है निमोनो अल्ट्रामाइक्रोसिलिको वोल्केनो कोनियासिस का मतलब लंग डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय सॉडस्ट। ये लंग्स का डिसीज का नाम है। ये 45 लेटर्स हैं इस वर्ड में। ये सेंटेंस में इट्स जस्ट ए सिंगल वर्ड है। ऐसा बहुत सारी चीजें इस बच्चे प्रोग्राम में सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद था बच्चों को पढ़ाई आसान हो जाना। कौन सब इंफॉर्मेशन जो है आसानी से याद करना, रिकॉल करना, हमारी ये कोशिश रही। माशाल्लाह बहुत सारे इसमें हम सक्सेसफुल भी रहे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो 50% से बिलो रह गए प्रैक्टिस करने से दे कैन क्रॉस 100% आल्सो। हम आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग डेमो पेश करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन है। चॉक पीस से लिखो, आप लिखो। ओके, 13th में बड़ा लिखो। 13th में 2023। 13th में गेट रेडी टू आंसर। 13th में इस साल का लास्ट ईयर का 13th में 2023। 13th में
Yes, sir. What is the answer? Yes. Confident? Yes. पलट के बोलो. What is the answer? Is correct, sir? Alhamdulillah. Audience में से कोई बोलिए sir please. Audience में से बोलिए कोई भी. 15 June 15th June 2021. 221. 15th June 221. Okay? Yes. Boys, are you ready? Are you ready with the answer? Yes. Yes. Yeah. Let's go. What is the answer? No. What is the answer? Bolo. Tuesday. Tuesday. Ma'am, choose the right answer. Tuesday. Correct. Ma'am, जो बोले आंसर बोलिए, करें हाथ उठाइए. Correct. हाँ. वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. Come on, relax. Chill. Okay. Yes, sir. आपका ग्रेड. देखने के बाद आंसर यहाँ पे बोलना. ओके. यहाँ नोट कर लेना. नोट करके आराम से. Take your own time, but tell me accurately. 4th October 22. Can you repeat, sir? 4th October 2022. 4th October 2022. 4th October 2022. You got it? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट. Girls ready? जल्दी करो. Come on. 4th October 2022. You got it? Yes. What is the answer? Tuesday. Is correct, sir? Okay. Yes, sir. आपसे जबर सर. 13th March 2022. यहाँ देख लेने के बाद 15 वहाँ देख के बोलना. Guess to the answer बोलना. Okay. 13th March 2022. Got it? Yes. पक्का? Ready? 13th March. जल्दी करो. 2022. Yes, sir. बोलो. Sunday. Sunday right answer, sir. Now, अब हम आपके सामने अभी 5-6 साल का हो गया. इंशाल्लाह now we are going to recall 25 साल का 2001 से 2025 तक. 2001 से 2025 तक 25 साल का. Within 25 years. Relax. अपने कॉन्फिडेंस रखो. You can do it. 25 साल का निकाल दो. हाँ. खुद के ऊपर डिपेंड ना होगा नहीं. अपने आप पे दूसरे पर डिपेंड नहीं. खुद के ऊपर. हाँ. 2001 से लेके 2025 तक. प्लीज बताइएगा. 2nd February 2005. 2nd February 2005. Got it? Functional. 5 code. 5 code. Yeah. First, got it? Yes, sir. What is the answer? Wednesday. Right answer, ma'am? Yeah, right. Right answer, ma'am? Yeah. 26 November 2002. 26 November 2002. 26 November. देखो बोर्ड देखो. See the board. You see the board, ma?
You got it? What is the answer? What is the answer? Tuesday. Tuesday right answer? Correct. Yeah, Tuesday right answer. Alhamdulillah. सर इस तरीके से 25 साल का नहीं, हमारी जर्नी 100 years. Not only 100 years, in fact ये 50 साल का स्टोर कर चुके हैं ये. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में another 50 years का स्टोर करने से 200 years का याद होगा इनको. 200 साल का याद करने की इनको ट्रेनिंग दी है ये प्रोग्राम में. माशाल्लाह. Okay, thank you very much, boys. You can take your seat. Well done. इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग डेमोंस्ट्रेशन पेश करेंगे जिसका नाम है फोटोग्राफिक मेमोरी, जिसमें हमारे बच्चे पेज में पेज याद कर चुके हैं. ओके, पूरी टेक्स्ट बुक का नहीं, एक सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉल अपॉन 30 वर्ड्स फोटोग्राफिक मेमोरी. हम एक पार्ट प्रोग्राम हम इधर हैं. विथिन 30 पेजेस के अंदर आपको ये नंबर बोले, इंशाल्लाह वो पेज में क्या वो बच्चा बोलेगा. विथिन 30 पेजेस के अंदर पेज नंबर 9. One box. This page belongs to chapter 1, personality development, and A reading. Attitude is attitude. In this page, one box. Okay, grammar. And grammar participant. This is correct. Parents are going. Within 30 के अंदर. Page number 18. Page number 18. Page number This 18. chapter belongs to chapter 1, personality development. And lesson name. And every success story is also a story of great failure. This picture includes 10 keywords. 10 paragraphs. Keywords, sir. ठीक है, काउंट करो 10. ओके, अब एक फाइनल रखिए, लास्ट खोल के पढ़िए. Page number 12. जो हाई दूसरा बोलो, हाई लेवल का 30 के अंदर. 25. पेज नंबर 25. This page belongs to chapter 1, personality development, and lesson name C reading. I will do it. And this picture page includes one box. लो कंसंट्रेट करो, आता. ठीक है बेटा, वेल डन. One box and आ रहा है? grammar part. हाँ? Yes, one box and grammar part. ग्रामर है कहता. Yes ma'am, is correct. Okay, well done. Next, आप आए? लो बेटा, well done. Sir, again 30. लो बेटा, might concentrate करो, target the whole world, focus on. Stop. Yes sir. Page number 11. Page number 11. This page belongs to Unit 1, Team Family, A reading, that added blanket. B reading My Mother. In this page, 3 para, 3 pics, 1 pic of author Rabindranath Tagore and 3 words and its meaning. Is correct? Yes. Page number 17. This page belongs to Unit 2, Team Social Issue. A reading, Oliver asked for more. In this page, 11 para and 1 pic is it. उसका information.
समझ में पूरी फोकस करो यू कैन डू इट कम ऑन या मैम कोई पेज नंबर बोलो पेज नंबर 15 देखो तो कैमरा पे पेज पे फोकस करो कैमरा पेज पे ला बेटा पेज बुक ला बेटा पेज नंबर This page belongs to Unit 2, Theme Social Issues. A reading, Oliver asks for more. In this page, 13 para and 1 page is there. इस कर इंफॉर्मेशन बोल थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पेज कर Oliver is an orphan boy. He is not getting proper food, so he is asking for more. That's important. Okay, thank you. Is correct, ma'am? Oh, अरे आइए, आओ. Look, गलती तो पुरानी. You have to tell you. Page number 9. Page number 9. On page number 9, This page belongs to. this page belongs to Unit 1, Theme Family, Ah. A reading, The Tattered Blanket. Ah, There is some grammar and editing. okay, good. Page number 13. On page number 13, this page belongs to Unit 1, Theme Family. C reading, A letter to a friend. It describes that Ramesh visited to Hyderabad and they were recalling their childhood days. Page number 25. On page number 25, there is 4 paragraphs and 2 pictures. One picture of author whose name is Barrett Browning, and there is 3 glossaries. Correct? Yes. Okay. Thank you, madam. बहुत अच्छा. इतना बोला tension. Can you give appreciation, please, once more, all this. अब हम आपके सामने हमारे एक powerful demonstration पेश करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं ambidextrity. Ambidextrity is a sign of genius. इस दुनिया में there are 80% of the people जितने भी genius लोग हैं, वो ambidextrous हैं. Ambidextrous मतलब some people are using both the hands for any particular skill or they are called ambidextrous. Example, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे सहाबा और ambidextrous. उनमें से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ambidextrous. हज़रत खालिद बिन वलीद was ambidextrous. Present world में अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, पिकासो, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान ambidextrous. बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स, हाईवे पर्सनालिटीज, दे आर ऑल ambidextrous. बच्चों को ये जीनियस क्वालिटी इम्बाइब करने के लिए हमने इनको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सिखाया है. ओके, आप इंटरेस्टिंग डेमो आप देखेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. बच्चे अपने दोनों हाथों से लिखेंगे एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम लिखेंगे अभी. आर यू रेडी? Yes. Put on partition in the middle. Same time. School. Write your name, your father name, now write the sentence, I am the best. Write the sentence, I am the best. इनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है लिखने की. Good. Write one mobile number. Write one mobile number. Write your mom name, mother name. Good. Can you show to this word? दिखाइए, सबको दिखाइए बेटा. छड़ा को दिखाओ.
खड़े हो अपना अपना दिखाई। इसमें अब ये बच्चे दोनों हाथों से 2 डिफरेंट वर्ड्स लिखेंगे, सेम टाइम 2 डिफरेंट वर्ड्स लिखेंगे। टिप टॉप, टिप टॉप, सेम टाइम, माइंड मैप। 1 2 ONE1 TWO2 1 2 book look write your name and your dad name, same time write your name and your dad name. बहुत चैलेंजिंग है। इंडिया हैदराबाद, लेफ्ट हैंड से इंडिया, राइट हैंड से हैदराबाद। Now you write 2 different mobile numbers, 2 different. Write your name, write your mother name. Next is write your mother name. Truly welcome our chief guest, Mr. Wajiuddin Qasim Sahab, Chairman of Baitul Imdad Trust. Please give a big round of applause. गेस्ट आ चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आप लिखे ऑडियंस को दिखाइएगा। Chief guest, we are grateful from the bottom of our heart to him for courteously and gladly accepting our invitation, for becoming the chief guest of this invitation, for becoming the. So today, please welcome Mr. Bala Ramesh sir for occasion today. Please welcome. Give a huge round of applause. The session, I concluded a very powerful demonstration from the students. By the way, let me introduce myself. My name is Zafar Mahmood. Ramesh sir, give a huge round of applause again. Thank you so much sir, your presence makes us feel. Give a huge round of applause. Kumar Mohit sir. Trainer. Well, I am in this field more than 2 decades. I have trained thousands of students in India and overseas also, like in Saudi Arabia. के अंदर 1 to 30 के अंदर आप पेज नंबर बोलो, उसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब है और बच्चे को पूरा बोलेंगे। पेज नंबर बोलिए। Page number 28. On page number 28, there is आराम से। This page. this page belongs to हाँ। Unit 2, Think Social Issues. There, say reading. There is one box of editing and his Solace. The grammatical parts. There is also 6 questions. It's correct. कोई दूसरा पेज बोलिए सर। This page belongs to Unit 2, Theme, Social Issues. A reading, Oliver asked for more. There is 20 paragraphs and 1 picture. It describes that Oliver does not get sufficient food. He is asking for more and he also pays the life bill. Thank you.
ऐसा ये पूरा टेक्स्ट बुक स्कोर करने वाले हैं। तो पेज नंबर के साथ में 19th May 221 19th May 221 boys get ready 19th May 221 2021 मालूम ना हो गया ना शॉर्टकट व्हाट इज आंसर is correct sir Wednesday is correct sir आप एक 2 October 2024 2 October 2024 नाना का बर्थडे got it yes what is the answer yes sir correct sir ऐसा बहुत सारे चीज़ for you to come take out the time today, being a very occupied day today. Thank you very much for coming for the inspiration of the student. Kindly bless us with your few words. What is the reason? Good morning. Good morning. I am happy to attend this function today. I am at very crucial stage. You are in crossroads. When you work hard, sincerely, you will be in a good position. In the 1983, I have 84. I am 10th class standard. 1984. I think you are not born. Okay. I came from 300 kilometers from Andhra. Okay. During the year 89-90, I came to Usmania University for the purpose of study, B.Ed. I studied B.Ed, Bachelor of Education. Okay. I have interest. I have goal. I have to study in Hyderabad itself. That's why I came from 300 kilometers distance. Okay, Andhra. My father is a agricultural labor. Okay, I came from. My parents are illiterates. Okay, with their support, I am here in the stage, and now I am DSP bolte, ACP Chaitanya. Okay. On those days, very difficult to understand English and Hindi because Andhra is a mother tongue is Telugu. Okay, little struggle. I have in the 10th class I got only just 54%. In the intermediate I got 60%. In the graduation I got 70%. Okay, I improved a little bit. Okay. We should not cheat our parents. We should not cheat our neighbors, our friends, our teachers. Okay, be fair. Okay, we should not go shortcut methods. We should not go for shortcut methods. Hard work. Percentage kamai to be fair enough. Okay. It is nowadays. So many changes are there in education system. Okay, in our days we don't have such opportunities and such facilities. Okay, for to go to school we have to walk for 5 kilometers. For 6th class I have walked for 4 kilometers. For 7th to 10th, 8th to 10th I have go on bicycle by 5 kilometers. I am unable to pedaling because Andhra area is a level area. Heavy winds are coming. Due to air flow, we are unable to drive a cycle also on those days. Okay, you have good opportunities. Don't waste your time. Social media, you should pay little attention to the social media. Okay, right? जो अपने पेरेंट्स को क्या चाहिए वो मालूम होना. We have to set up a targets. To reach that target we have to work hard. Okay, without work hard we will not get any improvement. Okay, best of luck. I hope your institute, your management will pay more
attention to your education and your development. Okay, your development is nothing but India development. Okay, okay. You got a good name about Hyderabad, India. Okay, in the world. Applause. Second prize. Actually, there is a tie. First prize again goes to Mehveen. Mehveen. Give a huge round of applause. Second prize goes to Taseem. Taseem. 7th class. Taseem. Now medals distribution. Marsha from 7th class. Marsha from 7th class. Give a huge round of applause. Clap should not start. Give a huge round of applause. Sania 7th class. Sania 7th class. Ruqayya 8th class. Yasin 10th class. Naseem 8th class. Naseem 8th class. Ruqayya 7th class. Ruqayya 7th class. Wasiya 10th class. Wasiya 10th class. Mariam 7th class. Mariam. Hafsa 7th class. Hafsa 7th class. Clap hands, audience. Khadri 8th class. Khadri 8th class. Abdul Rahman 8th class. Abdul Rahman. Obaidullah 9th class. Obaidullah 9th class. Shoaib 8th class. Shoaib 8th class. Aman 9th class. Aman 9th class. Shoaib 9th class. Shoaib 9th class. Azan 9th class. Azan 9th class. Talha 10th class. Talha. Irfan 9th class. Irfan 9th class. Now we will move towards Academic Excellence Award. Okay, thank you. All of the students, thank you. Thank you. Yes, sir. We will. I will talk with you later. I will take the number from you. Who is well known and distinguished figure in society. He is being highly respected and known for his kind deeds and selfless services for the People's Welfare and Education Trust. Please welcome Mr. Muiz Dinso with a huge round of applause to speak few words. डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा और तलबा के वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं लईक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आने की दावत दी और इस बेहतरीन महफिल में आपसे बात करने का मौका दिया। और इसके बाद मैं मुबारकबाद दूँगा लईक साहब को, आपके पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को, टीचर्स को और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स को कि आपने ये इंटेंसिव मेमोरी ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट की और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपका डेमोन्स्ट्रेशन रहा। मेरी तरफ से फिर से एक बार बच्चों के लिए तालियां हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आई अंडरस्टैंड, आई स्पीक switch between English and Urdu, hopefully you don't mind.
So I understand you only have high school students here and then parents and teachers. So my primary focus would be on the students. And as Mr. ACP just said, you are at the crossroads. Crossroads समझते हैं? You are at a point where you can take either one direction or another direction. एक वो डायरेक्शन है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा और एक वो डायरेक्शन है जो आपको वहीं छोड़ देगा जो आप यहाँ हैं. ओके, आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन लाइफ. आपका स्टेटस, आपके अखलाक, आपकी हर चीज़, आपका जो फ्यूचर है वो आपकी एजुकेशन पे ही डिपेंडेंट है. तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेमोरी ट्रेनिंग की और इससे आपने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी जो आपको आगे आपकी एजुकेशन में हेल्प करेगी. और एक दो चीज़ें और आपके सामने रखूँगा मैं. वक्त मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, आज मैं मेरी जॉब भी है, वापस जाना भी है. 5-10 मिनट सिर्फ आपसे बात करके चलूँगा मैं. वो ये कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. ये शेर मैं समझता हूँ आप सब ने सुना ही होगा, मगर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके मायने पर भी गौर करें और इस पर हम अमलावरी कैसे करें. हाउ डू यू प्रैक्टिस दिस, हाउ डू यू अचीव दैट खुदी, उस पर कोशिश करें. और एम फॉर द हाईएस्ट. कभी भी अपने गोल्स को लिमिटेड ना रखें. गोल्स को ये ना सोचें कि मैं 10th कर लूँगा, इंटर कर लूँगा, शादी हो जाएगी, या फिर 10th कर लूँगा, इंटर कर लूँगा, डिग्री कर लूँगा, सऊदी अरब चले जाऊँगा. दैट टाइम हैज़ गॉन. This is you are living in a different world. 20 years ago the situation was different. आपके पेरेंट्स जिन हालात से गुजरे हैं आपके वैसे हालात नहीं हैं अभी. हर जगह बाहर माहौल ख़राब है. So think of how you can live here and survive. And if you have to live here and survive and live a respectable life, you have to study well. मैं खुद एक मैनेजर हूँ IT कंपनी में. खुद हमको भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. एक हमारी ट्रेनिंग थी परफॉर्मेंस लीडरशिप की, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि हाउ डू यू बिकम अ गुड लीडर. उसकी चंद बातें जो उन्होंने मुझे सिखाई थी और मैं समझता हूँ उसमें से थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं विच आर रिलेवेंट टू यू. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखिए, अभी आपने 10 दिन की ये ट्रेनिंग की. अब देखो एक बात बताइए, अगर 10 दिन पहले ये ट्रेनिंग शुरू होने से पहले अगर आपसे कोई कहता कि आप मुझे बताएं कि 15 मई 2020 को क्या डे था, आप बोल सकते थे क्या? कैसे आया ये? सीखे. यू हैव पुट योर एफर्ट. तो हर इंसान के बीच में साइंस ये बताती है कि लोग 2 तरीके के होते हैं. और या फिर आप ये सोचें कि लोगों की 2 तरीके की जहनियत होती है. एक होती है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट. तो हमेशा हमें ये करना चाहिए कि हम हाउ डू वी हैव अ ग्रोथ माइंडसेट इन एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? आई एम गोइंग टू टॉक टू यू फॉर 5 minutes. ओके, so listen to me very carefully. It is basically nature versus nurture. Nature, N-A-T-U-R-E is nature. Nature तो समझते हैं ना, कुदरत. Nurture, N-U-R-T-U-R-E. Nurture का क्या मतलब है? किसी चीज़ को डेवलप करना. आप एक पौधा लगाते, उसको पानी डालते, उसको खाद डालते, उसको जो है जानवरों से बचाते, तो नर्चर होके बड़ा पेड़ बनता. सो नर्चर मीन्स दैट. इसका क्या मतलब है? अगर कोई इंसान सोचे कि मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी कुछ सलाहियतें हैं, आई हैव सर्टन मेमोरी और मेरे को ये चीज़ें अच्छी है, आई नो मैथ्स वेरी वेल फॉर एग्जाम्पल. ओके, मुझे फिजिक्स करना नहीं आता. इफ समवन हैज दैट माइंडसेट, सो व्हाट इज दैट? That is a fixed mindset. Okay, what is growth mindset? Growth mindset is, okay, I am good at maths. I know I have some limitations in physics, but I think if I do well, if I try harder, I can excel in physics as well. This is growth mindset. This is growth mindset. So it is very important that you always have a growth mindset, not just when you're studying. This will help you when you go for higher education. This will help you when you get into your professional life. I'll talk about myself. I'm a mechanical engineer. Okay, I started my career as a mechanical engineer. मैं एक design engineer था, aerospace के जो parts होते हैं airplanes के, I used to design that. But जब मैंने देखा कि I was in Mysore, Zafarsad. For 3 years I was in Mysore, Infosys.
So जब मैंने देखा कि मैं हैदराबाद आना चाह रहा था और यहाँ I did not have opportunities to work as a mechanical engineer. So I looked for options. What can I do other than this? I worked for 3 years. I've done my engineering for 4 years. So I've invested 7 years in mechanical engineering. अब मैंने सोचा कि अब हैदराबाद आना है, यहाँ पर उतने जॉब्स मैकेनिकल के नहीं हैं. And तब मैंने सोचा कि ठीक है, let me change my field. I get into software engineering. क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब्स ज़्यादा थे. So this is just an example of having an open mind. And I learned software engineering. I moved. मैं रिक्वेस्ट करा अपनी कंपनी से कि मुझे हैदराबाद ट्रांसफर दें. मैं हैदराबाद आया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर थे और उसकी जो ट्रेनिंग्स थे, I completed and I started my continued my career from there. Alhamdulillah, आज 16 years हो गए. I'm working in IT industry. So this is one example of having an open mind, not getting fixed on something. Okay? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते मेरे साथ जो थे और फिक्स माइंडसेट था, वो लोग सोचते ठीक है मुझे मैकेनिकल ही आता है, मैं मैकेनिकल ही करूँगा. ओके, बट दे आर स्टिल स्टक. बहुत सारे आज भी मैसूर में हैं एंड द अपॉर्चुनिटीज आई हैव, द ग्रोथ आई हैव सीन, दे हैव नॉट सीन इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता के मैं अपनी बात खत्म करूँगा. अक्सर ये लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट कम्स बाय बर्थ. आप देखते होंगे बाद बच्चे बहुत शार्प रहते ना. इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट कोशेंट, IQ. आइंस्टाइन का बोलते हैं इट वाज 160, हाईएस्ट रिकॉर्डेड IQ इन द वर्ल्ड बोलते हैं, बट आइंस्टाइन की थी इट वाज 160. आम लोगों की जो है 110, 120, मैक्सिमम 125, 30 तक जाती होता था. बट दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर स्टोरी. ओके, व्हाट यू आर गिवन. Now, how do you acquire that IQ, additional IQ which is missing? अगर आपको ये लगता है कि जो है आपको कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होती, आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे किसी ने बताया कि आप लिख कर याद करें. आपको कोई चीज़ याद नहीं होती, write it 5 times, okay, and then you remember it. And after a few months, you will realize that remembering is not that difficult for you because you've trained your brain. Correct? You have just done demonstrations of so many things that you have trained your brain to remember, to think logically and then get the answers out. Correct? So you just have to find ways on how you can overcome that obstacle. Okay, बहुत सारे challenges आते हैं ना पढ़ते वक्त, कभी कोई problem समझ में नहीं आती. I don't know if you remember एक Gauss-Jordan theorem होता था engineering में. Used to be very tough, very tough. And then what did we do? उसको 20 बार करें हम लोग. उसके बाद एग्जाम में जब वो आया, सबसे पहले मैंने कहा I do Gauss-Jordan theorem. So anything that comes that you feel is challenging, that you feel is difficult, you just have to try harder. You should not give up. That is growth mindset. और एक चीज़ होती है, जब आपके पास fixed mindset हो, तो you try to look smart with what you have. जैसे मैं एग्जाम्पल बताया मैथ्स का, आप ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं कैसे दिखाऊंगा मैं मैथ्स में अच्छा हूँ. सबको आप सब चीज़ें भूल जाते हैं. दूसरी चीज़ें, फिजिक्स में आप कमज़ोर है, यू विल नॉट फोकस ऑन दैट. बट इफ यू हैव ग्रोथ माइंडसेट, यू विल ट्राई टू एक्वायर एंड लर्न न्यू थिंग्स. ओके, एंड जब भी आप ये फिक्स माइंडसेट रखते हैं, आपका एक पॉइंट क्या रहता है? आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. ओके, but there's another word which is very similar to prove. What is that? Improve. Okay, it is not about proving yourself, it is about improving yourself. How do you improve yourself? Your competition is not with the person who has topped in the class. किसके साथ है आपका competition? Your competition is with yourself. आपने last year 80% marks लाए थे. Okay, now what is your goal? You should try for 90. 80 हो गया, you have conquered that. You have to increase your goal. Similarly, I'll request the teachers. Teachers भी ये देखें कि इसी, या फिर ये ना देखें कि बच्चा पास हो रहा है, डिस्टिंक्शन में आ रहा है. Look for growth. Are you seeing growth in his education or her education? जब आपको उसमें growth नजर आ रही है, then you should be satisfied कि you are doing your job properly. अगर आपको growth नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम है. ओके, सो ये चीज़ें हैं, आप इस पर फोकस करें.
how do you have a growth mindset in everything, okay? Not just in your studies, not just in your professional life, also in your personal life. आप ये कोशिश करें, how can I become a better individual? आज मेरे अखलाक ऐसे हैं, मेरे अखलाक और अच्छे कैसे हो सकते हैं? ठीक है? आप ये कोशिश करते रहें और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन के साथ आपके जो सलूक है, think about it, how can you make it better? कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना। इहसान का क्या मतलब है? बेहतरीन, यानी अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन से बेहतरीन सलूक करो। और बेहतरीन की कोई लिमिट नहीं है, there is no limit defined. You have to improve it every time. ठीक है? कैसे इम्प्रूव करना है? कैसे इम्प्रूव करना है? प्रैक्टिस वालिदैन के साथ। Think about it. You will have so many examples on how you react. आप उनसे कैसे बात करते हैं? आपका लबो लहजा देखें। काम बोले जरा बेटे सौदा लेके आओ, अरे जाओ जी मेरे को काम है, अरे जाओ जी होमवर्क करना है। कोई बोलते हैं क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके? अच्छे उनके साथ अच्छे से अच्छे मैनर्स में बात करना और रिफ्लेक्ट करना, हाउ आई एम डूइंग। ऐसे जिंदगी नहीं गुजार लेना कि सुबह उठ रहे शाम हो रही जिंदगी तमाम हो रही, वैसे नहीं। You should reflect on what you have done. How was your every interaction with your parents? तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत बहुत मुबारक रही साहब को और तमाम लोगों को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स, डू वेल एंड एक्सेल इन योर करियर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहित साहब का जो अपना ऑफिस का वक्त निकाल के आए। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दावत देता हूँ मौलाना वजीरुद्दीन साहब जो हमारे टीचर थे, आपसे खिताब करें और उनको मोटिवेट करें और सही रास्ता दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। और अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा हुफ़ाज़ इज़ाम, स्कूल के ज़िम्मेदार टीचर, तलबा अज़ीज़, इस वक्त में दो चार बातें आप सबकी खिदमत में रखना है। सबसे पहले तो मैं स्कूल की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को शिरकत की दावत दी और हिम्मत अफजाई भी की है। मैं तो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे स्कूल के ज़िम्मेदार साहब जनाब रईस साहब की मोहब्बतें हैं, याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं और मैं डुम्मा मारते रहता हूँ। तो ये हमारी तरफ से भी कमज़ोरी है, मगर उनका इखलास, उनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन वक्तन फ़वक्तन स्कूल की कारगुजारी और स्कूल में चलने वाली एक्टिविटीज़ की मुसलसल खबर मिलती रहती है। तो इस सिलसिले में एक अहम तरीन गुजारिश पेरेंट्स की खिदमत में ये रखना है। देखिए, हम सब मुसलमान हैं और हमने अपने बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल का इंतखाब किया है जहाँ पर हमारे बच्चे अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ असरी तालीम के साथ साथ इस्लाम के कल्चर से भी जुड़े रहें और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जान सकें।
तो ऐसे स्कूल का हमने अपने बच्चों के लिए इंतखाब किया है। जब हमने इतनी फिक्र की और इंतखाब किया और चॉइस की कि ऐसे अच्छे स्कूल में डालें और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। मैं बहुत ही अदब के साथ तमाम माओं बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों को आप बहुत तवज्जो से सुनें। जब स्कूल का हमने इंतखाब किया तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस फिक्र के साथ और जिस कोशिश के साथ आपने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतरीन फ्यूचर के लिए ऐसे स्कूल के बारे में आपने सोचा और उसका इंतखाब किया, तो वहीं स्कूल के जिम्मेदार भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं अर्जुन, कि कैसे हमारे आने वाली नस्लों का बेहतर फ्यूचर बने। यहाँ फ्यूचर से मुराद ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से माँ बाप शायद ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर से मुराद ये है कि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए और बेहतरीन साइंटिस्ट बन जाए, अच्छी जॉब उसे मिल जाए, ऐसा हमारा बच्चा और हमारी बच्ची इस लेवल के पढ़ने वाले बन जाए। तो मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना ज़रूरी समझता हूँ, हमारी नज़र में एक बेहतरीन डॉक्टर बनने से कहीं ज़्यादा, बेहतरीन इंजीनियर बनने से कहीं ज़्यादा, बेहतरीन साइंटिस्ट बनने से कहीं ज़्यादा उस बच्चे का इंसान बनना जरूरी है। एक बेहतरीन मुसलमान बनना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हम अच्छा से अच्छा बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर तो बना सकते हैं, बेहतरीन इंजीनियर भी बना रहे हैं, बेहतरीन साइंटिस्ट भी बना रहे हैं। सब कुछ जो इंसानी जरूरत के लिए एक समाज में चाहिए, इस दुनिया में चाहिए, हर पेरेंट, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सहूलतें फराहम कर रहे हैं। और बच्चे बड़े होकर जो माँ बाप का ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है मेरे अजीज माओं में बहुत हालात है इस वक्त में। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपने और दूसरे टॉपिक पर आऊं। इस वक्त में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, जो हर मुसलमान को, हर पेरेंट्स को करने की जरूरत है, वो ये है कि हम अपने बच्चों की फिक्र को, उनके जहन को इस्लामिक माहौल में ढालें और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाएं अपने बच्चों का। इसकी मिसालें अगर आपको देखना हो और समझना हो तो इस वक्त में फलस्तीन की जमीन आप सबके सामने है। कौन से घर होगा इस वक्त में जिनके सामने फलस्तीन का मंजर नहीं है, और कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो आज अपने घरों में बैठकर व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर उन फलस्तीन के वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। आप सोचिए, उनके घर चले गए, उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाना आता है तो वो बच्चे कटोरा लेकर ठहरे हुए कि कोई हमें रोटी डाल दे, कोई हमें ब्रेड दे दे, कोई दूध का पैकेट दे दे, कोई हमें चॉकलेट दे दे। कई दिन गुजर गए, उन बच्चों को खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। हम बहुत अच्छे माहौल में हैं आज कि हमें खाने को 3 टाइम खाना मिल रहा है। हम अपने माँ बाप से मांगेंगे तो हमें खाने के लिए हर वो चीज मिलेगी, खेलने के लिए खिलौने, हर हम जो चाहेंगे वो मिलेंगे, जो मार्केट में नहीं मिलता है हमारे माँ बाप ऑनलाइन से मंगाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन फलस्तीनी को देखो, उनके मासूम बच्चों को देखिए, वो जख्मी पड़े हुए हैं, जिस्म उनके परखचे उड़ गए, हाथ कट गए, उनके चेहरे कट गए, खून रिस रहा है उनके जिस्म से, बदन से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके पास एक बैंडेज तक नहीं है जहां पर वो लगाकर अपने जख्म को सुखा सकें, अपने खून को रोक सकें। ऐसे हालात हैं उन बच्चों के। उस माहौल के अंदर भी वो बच्चे रोजाना टाइम निकालकर टेंटों में जाते हैं और वक्त निकालकर कुरान को सीख रहे हैं, हिफ्ज याद कर रहे हैं। ये होते एजुकेशन की फिक्र, ये होती इस्लाम की फिक्र कि बमों के माहौल में हो, गोला बारूद के माहौल में हो, तलवारों के साए में हो, लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छूटना चाहिए, इस्लाम की तालीम नहीं छूटना चाहिए। मेरा और हमारा रिश्ता जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और उनको हम अपने आप को उनका गुलाम समझते हैं, वो गुलामी का रिश्ता मौत के सायों में भी नहीं टूटना चाहिए। ऐसी फिक्र अपने बच्चों के दिलो दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि बेटा हम रहे ना रहे तुम्हारी जिंदगी में,
मौत का किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, हम रहे ना रहे, ये घर जिसमें तुम रह रहे हो ये रहे ना रहे, आज जो 3 टाइम का खाना तुमको आसानी से तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं, ये तुम्हें मिले न मिले, लेकिन इस बात पर जमे रहना और इस बात के लिए तैयार रहना, आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। चाहे माहौल कैसा भी हो, तुम्हें एजुकेशन के साथ जुड़ा रहना है और दीन के साथ जुड़े रहना है, ना कुरान को छोड़ना है ना इस्लाम को छोड़ना है। ये बात आप ही अपने बच्चों के दिल दिमाग में बिठा सकते हैं और इसके लिए एक बेहतरीन माहौल क्रिएट आप ही कर सकते हैं। हम यहाँ ठहर के बोल सकते हैं, स्कूल में ठहर के कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बात का माहौल वो देना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बात को बहुत संजीदगी से समझिए। हम लोग 2 रोज पहले एक प्रोग्राम में थे, हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल कबीर साहब ने एक किस्सा सुनाया। मैं चाहता हूं कि वो किस्सा आप हर माँ सुने। वो किस्सा, एक गांव की बच्ची, माँ बाप ने बहुत फिक्र के साथ, तड़प के साथ उस बच्ची को शहर हैदराबाद भेजा कि जाओ पढ़ो अच्छे से। वो बच्ची आई और यहाँ उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और बेहतरीन डॉक्टर बनी। और डॉक्टर बनने के बाद जब उसको डिग्री मिलने का दिन था, वो डिग्री उसको मिली, तो उसने डिग्री हासिल करने के बाद अपने माँ बाप को फोन किया उस लड़की ने और कहा कि अब्बा जान, अम्मी जान, ये मेरी जिंदगी का आपको आखिरी कॉल है। अब इसके बाद मेरी आपसे मुलाकात भी नहीं होगी और इसके बाद मेरी आपसे बातचीत भी नहीं। उसके बाद में बच्ची ने फोन कट कर दिया। माँ बाप को बड़ी फिक्र हुई और होना भी चाहिए। माँ बाप अपनी बच्ची की उस फिक्र में, तड़प में कि बच्ची कहाँ चले गई, क्या बात हो गई, इस तरह का कॉल कभी नहीं आया। घर में वो रोजाना हमारे साथ अच्छा रहने वाली, अच्छा बिहेव भी करने वाली, लेकिन आज उस बच्ची का कॉल ऐसे आया, क्यों आया? फौरन माँ बाप उस बच्ची की फिक्र में जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ पर आए। आने के बाद कॉलेज वालों से बातचीत की, उसकी सहेलियों से मुलाकात की, फिर वो जहाँ रहती थी वहाँ गए, मालूमात हासिल की। तो फिर एक वकील के पास में गए जो करीब में रहता था, उसके पास जाके पूछा कि आपने हमारी बच्ची के बारे में कोई खबर है आपको है क्या, इस बच्ची को आपने कहीं देखा है? उस वकील साहब ने उस बच्ची के माँ बाप से कहा कि इस बच्ची का शादी मैंने ही कराई है और एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी कर ली। डॉक्टर बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ग्रीनविल हाई स्कूल का 6th एनुअल डे प्रोग्राम रहा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब काफ़ी जोश और खरोश के साथ जो है इसमें हिस्सा लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर ऑल द चीफ गेस्ट हु हैव केम इन एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, especially brother Moiz, brother Imran, Maulana Wajiuddin Saab. They themselves are a motivation story for the students. So we were blessed to have such a distinguished guest who have motivated the students. This year is very special to us, as this year the first batch of Greenville is going to write the board exam. We have got the recognition for 10th class last year, and this is the first batch who are going to write the board exam. So we are looking forward to have a very good result. We have our teachers have done a lot of hard work and have trained the students. We hope they are going to do very well, inshallah. And very thankful. I'm very thankful for the parents who have come in great numbers and appreciated the performance. The memory training class that we have been doing for last 10 days, that concluded successfully. Brother Zafar has given a very good training to the students, and today we have seen their demonstration. So we are thankful for Brother Zafar, who has been training the students for last 10 days. Brother Imran, who has made it possible for us to have this training. Brother Qasim, who has been associated with the school with all the sponsorship and all, like this event which was not within the range for us to be able to have this memory session. With the help of Brother Qasim, we were able to get it done. The students have learned a lot and enjoyed a lot. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.